Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today's topic is image restoration. So this is a new topic, and we will see how to have a difference between image restoration and some filtering. So in the last lectures, what we have done some enhancement techniques, and these enhancements were based on spatial domain techniques. And then in spatial domain techniques, we also learn point processing techniques, that if we want to have point-to-point processing and direct processing, then how do we do it, and apply some filtering for enhancement the image. So like removing the noise and some kind of blurring, and also enhancing different brightness and contrast. So after that, we also learned that if we want to apply the mask on the image, then how do we have different kind of filters. And we learned that this is also one of the good techniques, that if we apply, we have a mask and then we put this mask above the image, and we have a new image which is after application of this mask. So this is a mask filtering. And this with mask filtering, we also learn different kind of approaches that enhances the image. And after that, we learn the frequency domain techniques, and we also learn that there are some ideal and Butterworth low pass filtering, and we learn the difference between it, and then also we have applications of it, that if we apply on a frequency domain. And after that, we also learn it how the high pass filters are for ideal and Butterworth filters. And at the end, we also learn the Gaussian filters and homomorphic filters, that what are the use of it, and how do we apply it, and what are the results of it. So these are some of the enhancement techniques that we learned. There are many more, but they are the basics one. And today we will start the new topic, and that topic is called image restoration techniques using some filters and other mathematical operations. So first we will learn the difference between the enhancement and the restoration, that if we want to apply the enhancement on the image, and if we want to restore the image, what are the basic difference between it. And image formation process and degradation models. Then we will see that if you want to have image processing, then what are the basic steps for having the image after degradation. And then we will learn the degradation model in continuous function and in discrete formulation. So we will learn that if we have an image that we want to restore, so for that we will need a degradation function, and if we have a degradation function, then we know that we can have it in a continuous domain and also in the discrete domain, because for a digital domain we need to have a discrete domain. And as normally the images are in a frequency domain, so first we will derive the formula in a frequency domain, and then after that we will learn in a discrete domain. And then after that we will learn if we have a one-dimensional image or a function, then how we will need to apply it, the degradation function. And after that we will also see the two-dimensional, because the images are normally in two dimension. So first of all, the objective of image restoration, how do we define the objective of the restoration, that why do we need it. So image restoration, likewise image enhancement, attempts at improving the image quality. तो बेसिक मकसद हमारा ये होता है दोनों इमेज enhancement में और इमेज restoration में, कि हम इमेज की क्वालिटी को बेहतर करें, हम और उसको विजुअलाइज बेहतर कर सकें, हम उसके कंटेंट्स को रीड कर सकें, हम वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो हम ले सकें इजीली. तो इस वजह से हम करते क्या है, इमेज प्री प्रोसेसिंग करते हैं, ये प्रोसेसिंग इमेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं. तो वो प्रोसेसिंग जो है वो इन्हांसमेंट की भी हो सकती है और वो रिस्टोरेशन की भी हो सकती है. Some overlap exists between image enhancement and restoration. अब
ये पॉसिबल है, और बहुत सारे फिल्टर्स जो हम यूज़ करेंगे वो वही होंगे जो हम इमेज एनहांसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस लाएंगे, तो वो हम एज अ रिस्टोरेशन यूज़ करेंगे। इमेज डिफरेंसेस हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के दरमियान, इन्हांसमेंट और रिस्टोरेशन के। इमेज enhancement is largely subjective while image restoration is mainly objective process। अब इमेज इन्हांसमेंट जो है हम उसमें सब्जेक्टिव वाइज देखते हैं कि जो इमेज है वो हमारे पास हमें क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, हम उसमें कौन सी चीज़ें देखना चाह रहे हैं, हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसके नॉइज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रिस्टोरेशन की, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इमेज के ऊपर जब परफॉर्म करते हैं रिस्टोरेशन, तो इसका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि हमारे पास हम एक इमेज ले रहे हैं जो कि मोशन की वजह से उसमें ब्लरिंग इफेक्ट आ रहा है। अब हम करते क्या हैं कि हम उस इमेज को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि क्योंकि इमेज ब्लर हो गया है मूवमेंट की वजह से, तो अब हम ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम उस इमेज को रिस्टोर कर सकें। तो रिस्टोर कैसे करेंगे, हमें बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलेज होने चाहिए हमारे पास कि हम कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे थे, शटर कितनी देर तक ओपन था कैमरा का। तो ये बेसिक अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम उस इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ऐसा एप्लीकेशन या कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा रहे जो कि कोई नॉइज़ को रिमूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नॉइज़ था सॉल्ट एंड पेपर का, हम उसको रिमूव नहीं कर रहे, हम कर क्या रहे हैं, हम वो ब्लरिंग इफेक्ट रिमूव कर रहे हैं ताकि वो इमेज जो है रिस्टोर हो सके, ओरिजिनल हालत में आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए रिस्टोरेशन के लिए। हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनके वैल्यूज़ हमें पता होने चाहिए, और कुछ वेरिएबल्स हैं, उनके वैल्यूज़ अगर हमें पता होंगी तो तब हम रिस्टोरेशन की तरफ जा सकते हैं। तो हम इन्हांसमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, हम सिंपल वो फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और ऑब्जर्वेशन और थ्रू मैथमेटिकल फार्मूलाज देखते हैं कि क्या वो रिज़ल्ट बेहतर है। अगर बेहतर है तो हम कंटिन्यू करते हैं। Restoration attempts to recover an image that has been degraded by using a prior knowledge about the degradation process। अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इमेज को रिकवर करते हैं, तब रिकवर करेंगे जब हमारे पास कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन डिग्रेडेशन की होगी कि हमारा जो इमेज है वो डिग्रेड कैसे हुआ, मोशन की वजह से हुआ या जो शटर था वो ज़्यादा देर ओपन रहा, क्या वजह हो सकती है, लाइट की इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं, अगर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी तो हम तब उसको रिकवर कर सकते हैं। तो प्रायर नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। रिस्टोरेशन टेक्निक इन्वॉल्व मॉडलिंग ऑफ डिग्रेडेशन एंड अप्लाइंग द इनवर्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर द इमेज। अब हमें क्या करना होगा, हमें उस डिग्रेडेशन को मॉडल करना होगा। तो हम पहले ये मॉडलिंग करेंगे कि ये डिग्रेडेशन हुई कैसे, मोशन की वजह से हुई, मोशन अगर हुई है तो उसकी स्पीड क्या थी, टाइमिंग के लिहाज से उसकी डायरेक्शन क्या थी। तो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसको मॉडल कर लेंगे कि अब ये इमेजेस इस सिचुएशन में ली गई हैं। तो जब हम इमेजेस लेते हैं और एग्जैक्टली मॉडल को अप्लाई करने के बाद और जो हम ओरिजिनल इमेज है उन दोनों को आपस में कंपेयर करें, अगर दोनों सेम आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडल बिल्कुल ठीक है। तो अगर मॉडल ठीक है तो फिर हम उसको इन्वर्स कर लेते हैं। तो जब इन्वर्स करेंगे तो हम ओरिजिनल इमेज की तरफ जा सकेंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज के थ्रू हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो रिस्टोरेशन प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एस्टिमेशन करते हैं। तो वो एस्टिमेशन क्या है, ऑप्टिमल एस्टिमेशन करते हैं कि कुछ इज़म्पशन हम करते हैं, और वो इज़म्पशन की बेसिस पे हम मॉडल तैयार करते हैं। जब वो मॉडल तैयार होगा तो फिर उसके बाद हम उसके इन्वर्स लेते हैं, और जब इन्वर्स लेंगे तो हम ओरिजिनल इमेज की तरफ जा सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास रिस्टोरेशन है और इन्हांसमेंट में वहाँ पर थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। इन्हांसमेंट में हम बेसिकली सिंपल इमेज को इन्हांस करते हैं डिफरेंट फिल्टर्स के ऊपर, और
हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हम रिस्टोरेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे पास मॉडलिंग हम करेंगे कि ये जो इमेज है ये डिग्रेड हुआ है, इसमें नॉइज़ आया है या ये डैमेज हुआ है, तो ये किस बेसिस पे हुआ, उसकी वजह क्या थी। जब हम वो वजह मालूम कर लेंगे और उसको मॉडल कर लेंगे तो फिर हम उसका रिवर्स लेते हैं और इन्वर्स कर लेते हैं। जब हम इन्वर्स लेंगे तो उसकी बेसिस पे हमारे पास ओरिजिनल इमेज आने के चांसेस हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इमेज एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक होगा वो क्योंकि हम एस्टिमेशन करेंगे, मॉडल करेंगे, तो इस वजह से रिजल्ट्स 100% करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन बेहतर हो सकेंगे, वो रीडेबल होंगे, या जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो हमें मिल सकेगा। सो ओवरव्यू क्या है कि अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में ले सकते हैं। सो डिग्रेडेशन मॉडल कैन बी in different categories like a special domain techniques, frequency domain techniques and other transform domains। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स हैं, उसकी बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम मॉडल की बेस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, तो उनकी बेसिस पे हम उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। और हम स्टैटिस्टिकल इमेजिंग मॉडलिंग भी कर सकते हैं कि अगर हम मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम मॉडल तैयार करते हैं, तो हम उसकी बेसिस पे भी इसके डिफरेंट किस्म के मॉडल तैयार कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे हम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। तो अब हम करते क्या है कि हम थोड़ा से जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम उसको एक्सपेंड करेंगे और उसकी बेसिस पे हम बेसिक मॉडल तैयार करेंगे। जब वो बेसिक मॉडल आ जाएगा हमारे पास, तो फिर हम उसको कैटेगरी वाइज लेकर जाएंगे कि अगर हम स्पेशल डोमेन में या कंटिन्यूस में होंगे तो फिर कैसे होगा, और अगर हम उसको डिस्क्रीट में लेकर जाते हैं तो फिर उसके लिए फार्मूला में हम क्या चेंजेस लाएंगे, और फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम करते क्या है कि assumption करते हैं इफ़ इनपुट इमेज हमारे पास है f ऑफ एक्स वाई, तो हम एक इमेज लेते हैं जो हमारे पास है f ऑफ एक्स वाई, सिंपल फंक्शन है जो हम ऑलरेडी यूज़ करते रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम करते ये हैं कि इसके साथ हम डिग्रेडेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और इसके ऊपर हम डिग्रेडेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, और ये हम एक्चुअली करेंगे क्या कि इसको हम मॉडलिंग इसकी करेंगे। तो ये अब हमारे पास डिग्रेडेशन फंक्शन आ गया। इसके साथ हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि कुछ नॉइज़ ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास कुछ नॉइज़ है जो कि ईटा एक्स और वाई आ जाता है। तो जब हम ये ऐड कर लेंगे डिग्रेडेशन के साथ, तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास अब वो इमेज है या वो फंक्शन है जिसमें डिग्रेडेशन भी है और जिसमें नॉइज़ भी है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई, तो अब हम करेंगे क्या कि हमने इसको रिस्टोर करना है, ओरिजिनल इमेज को रिस्टोर करना है। तो वो क्योंकि हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई अब आउटपुट इमेज है, आउटपुट फंक्शन है जिसमें डिग्रेडेशन भी है और नॉइज़ भी है, तो हम रिकवर करेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, लेकिन वो हम जी ऑफ एक्स वाई को यूज़ करेंगे, हम इसको लेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको लेंगे तो उसके लिए हमको रिस्टोरेशन फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस अप्लाई करेंगे, मोस्टली फिल्टर्स होंगे, लेकिन वो फिल्टर्स जो हैं उसमें हम सिंपल थोड़े से फार्मूला में चेंजेस लाएंगे। तो जब हम वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ हैट एक्स और वाई आ जाएगा। अब ये हमारे पास वो इमेज होगा जो कि रिस्टोर्ड हो चुका होगा। अब इसको एफ हैट हमने क्यों लिया हुआ है, उसकी वजह ये है कि ये एस्टिमेशन है, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है। हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर हम ओरिजिनल इमेज लेते हैं और उसके ऊपर हमारे पास कुछ डिग्रेडेशन हुई है, हम उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि हम एस्टिमेशन करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं, तो हम ओरिजिनल इमेज तो रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नियर टू ओरिजिनल हो। इस वजह से ये ओरिजिनल नहीं होगा, ये एफ हैट होगा, क्योंकि ये एस्टिमेशन है, ये कुछ उसको रिकवर करने की कोशिश की गई है। तो इस वजह से एफ हैट जो है वो हमारे पास वो इमेज होगा जो कि रिस्टोर्ड हो चुका होगा। तो ये बेसिक हमारे पास मॉडल है उसका, जो प्रोसेस है डिग्रेडेशन मॉडल का,
और ये हम यूज़ करते हैं इमेज रिस्टोरेशन के लिए। ठीक है, अब हम आगे अगर सिंपल इसके लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? So for the special domain we can represent as a g of xy this is equal to what? h x y, क्योंकि हमारे पास डिग्रेडेशन है ये। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं साथ में, और साथ में हम कोवलेशन करते हैं f of x y इज प्लस हम इसमें ईटा लेते हैं जो कि हमारे पास नॉइज़ है x एंड y। तो अब ये जो हमारे पास g ऑफ x y है ये किस चीज़ की कम्बिनेशन है? ये हमारे पास है h ऑफ एक्स वाई जो कि डिग्रेडेशन है, ओरिजिनल इमेज है, उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में हम ऐड करते हैं कुछ नॉइज़ को। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो इस सिचुएशन में वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ जी ऑफ यू एंड वी। This we already know, and this we can make it equal to h u and v into what we have f u and v plus then we have n u and v, where h u v this is a Fourier transform of hx and y। ठीक है, और fuv is the Fourier transform of the input image। तो ये Fourier ट्रांसफॉर्म है जो हमारे पास इमेज है उसका। ठीक है, और जो हमारे पास nuv है ये है हमारे पास जो एडिटिव नॉइज़ है, हम उसका Fourier ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो एडिटिव नॉइज़ ईटा एक्स वाई के लिए जो हमने नॉइज़ एज अ नॉइज़ लिया था हम उसको लेते हैं। सो दिस ऑपरेशन इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑपरेशन एंड इक्विवेलेंट ऑपरेशन इन स्पेशल डोमेन इन ऑर्डर one of so here we see that the special domain we have represented this operation as a correlation operation, and we said earlier that the correlation in the special domain is equivalent to multiplication in the frequency domain. So that is what the second term GUV is equal to HUV into FUV plus NUV। तो अब क्योंकि हमने ये इससे पहले ऑलरेडी डिफाइन किया था कि अगर हम स्पेशल डोमेन में लेते हैं तो हम अगर उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिंपली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, कोरिलेशन का जो हमारे पास प्रोसेस है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं? वी विल हैव टू लुक सम फॉर सम डिफिनीशंस। So this definitions we will use it throughout our restoration process. So here what we have to have a degradation image, and this degradation image is G of x y is equal to this, we can represent it as a H f into x y प्लस ईटा एक्स वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अब इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम ईटा जो एक्स वाई है जो एक्चुअली नॉइज़ है हमारे पास, अगर हम इसको इक्वल कर लें ज़ीरो के, मतलब कि हम इसको इग्नोर कर दें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास ये फार्मूला जो है बहुत सिंपल रह जाएगा। तो हम सिंपल फार्मूला को आगे लेकर जाएंगे और फिर आखिर में हम उसके साथ नॉइज़ को ऐड कर लेंगे ताकि हम इस फार्मूला को आगे एक्सपेंड कर सकें इजीली। तो हम इसको यूज़ करेंगे लेकिन बाद में, पहले हम सिंपल इस फार्मूला को इसको एक्सटेंड करते हैं जो कि डिग्रेडेशन है। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी हैव नाउ एज अ डिग्रेडेशन इमेज, सो दिस इज जी ऑफ एक्स वाई h into f x y।
So this is our simple formula now, and H is our degradation operator. Now the first term that we will define in our case is known as a linearity. So what do we mean by linearity, or if the degradation operator H is a linear operator? अब अगर हमारे पास ये सिंपल लीनियर हो तो लीनियर के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, लीनियरिटी की सिचुएशन में अगर तो ये हमारे पास लीनियर है, ठीक है, H, तो इस सिचुएशन में हम आगे फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और अगर H लीनियर है, मतलब हम उसमें जो चेंजेस हैं वो लीनियरली आ रही हैं, डिग्रेडेशन जो है वो लीनियर है, तो उस सिचुएशन में हम फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और वो कुछ इस तरह होगा. सो वी नो दैट इफ वी हैव टू फंक्शंस, से f of 1 x y and f of 2 x y, then we say that if H is k into f of 1 x y plus this is k1, okay, and this is k2, f of 2 x y. अब हमने क्या किया कि हमारे पास सिंपल k एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो क्योंकि हमने कहा कि लीनियरली होगा, तो लीनियरली के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं सिंपल और हम उनको लेते हैं तो हमारे पास ये लीनियर कांस्टेंट वैल्यू है k, ठीक है, तो हम k1 और k2 ले लेते हैं, साथ में उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इफ दिस टू फंक्शंस f1 and f2 are constant and k1 and k2 are, sorry, this k1 and k2 are constant in this particular relation, then what we can do, we can have it as a k1 h into f of 1 x and y plus k2h f of 2 x and y. तो हमने क्या किया कि इस k1 और k1 और k2 को हमने बाहर निकाल लिया इस इक्वेशन से, ताकि हम इसको सिंपली यूज़ कर सकें आगे. अब हम करते क्या हैं कि हमने अगर कहा कि ये लीनियर है, तो लीनियर के सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम सिंपली इसको कांस्टेंट के तौर पर 1 ले लेते हैं. अगर हम लेते हैं k इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू k2 एंड इज इक्वल टू 1, ठीक है. अब हम अगर इसको 1 ले लेते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास फॉर्मूला सिंपल इस तरह आ जाएगा कि h इज f1 to x y plus f2 x and y. So this is equal to क्या होगा हमारे पास, हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि f of 1 x and y plus h f2 x and y. तो ये अब हमारे पास क्या होगा, एडिटिव, हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की देख रहे हैं, क्योंकि
सिंपली हम इनको अगर 1 ले लेते हैं K1 और K2 को, तो इस सिचुएशन में हम अगर एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो सिंपली हमारे पास बेसिक ये वाला ऑपरेशन आ जाएगा. सो वी नो दैट वेरी वेल दैट फ्रॉम अ लीनियर सिस्टम थ्योरी दैट दिस इज नथिंग बट द famous superposition theorem, and as per the definition of linear system, we know already that the superposition theorem must hold true if the system is linear system. Now using the same equation, if we assume that this K1 and K2 are equal to 1, then the same equation is we have the output as a h into f1 x y and plus h into f2 xy. Okay, so this is the basic response. So h1 operator and if we have this operator, the basic values for h, and we have this position of x and y for f and f1 and f2, then we can have the linear operator, which is, we also call it as a superposition theorem. And this is also the additive property of the linear operation. अब हम क्या करते हैं, हम होमोजेनिटी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी देखी वो हमारे पास है एडिटिव. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर होमोजेनिटी है किसी फंक्शन के अंदर, जो हमारे पास डिग्रेडेशन फंक्शन है उसके लिए, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो होमोजेनिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम लेते हैं, इफ़ वी हैव अज्यूम दैट f2 x एंड y इज इक्वल टू 0. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इट गिव्स अस h into K1 f1 into xy is equal to, सिंपल हमारे पास K1 आ जाएगा और h into f1 x और y आ जाएगा. तो अब इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी के, क्योंकि ये हमारे पास f2 जो था हमने उसको 0 ले लिया, तो ये हम इसको सिंपली आउटसाइड ले जा सकते हैं K1 को, और जब हम इस K1 को वापस बाहर लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास सिंपल होमोजेनिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी. ठीक है. नाउ फॉर द इनवेरिएंट ऑफ position. So position invariant, what we can do, we can also have some basic function, like if we have a h f into x minus alpha sorry, यहाँ हम इसको y माइनस बीटा. तो अगर हम ये लेते हैं तो इस सिचुएशन में हम लोकेशन इनवेरिएंट के लिए सिंपली हम इसको इक्वल कर सकते हैं g ऑफ x माइनस अल्फा y माइनस बीटा. So this means that g of x y is equal to h of f of x y. तो इस सिचुएशन में ये सिंपली पोजीशन इनवेरिएंट आ जाएंगे, तो हम इसको पोजीशन इनवेरिएंट के तौर पर ले सकते हैं. ये अब हमारे पास पोजीशन इनवेरिएंट आ जाएगा. और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि डिग्रेडेशन मॉडल फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, अगर हम सिंपल कंटिन्यूस फंक्शन लेना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम कैसे लेंगे डिग्रेडेशन
मॉडल को। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि वी look at the degradation model in case of continuous function. So we use the mathematical expression where we have a delta function, say delta x and y is equal to this will equal to 1 if x is equal to 0 and y is equal to 0, and it will be 0 otherwise. ठीक है, तो अगर हमारे पास बेसिक ये वाला इक्वेशन है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है उसमें हम डेल्टा लेते हैं एक्स वाई, तो 1 होगा अगर तो x 0 है और y 0 है, और अगर और कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास तो उसके लिए हम 0 यूज़ करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अब हम डेल्टा को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, जो हमारे पास x और y के वैल्यूज़ हैं। सो this is the definition of delta function that we have already used, and we can use this shift version of the delta function. So how we can do it? That is delta x minus x naught y minus y naught. And this is the same 1 for x is equal to 0, y is equal to 0, 0 otherwise. ठीक है, तो ये अब हमारे पास होगा shifted की situation में. अब if as we have seen earlier that if we have an image, say f of x y, and multiply it with the delta function, then what we have in this situation, so we can say it as a f of x and y, and then we have a delta x minus x naught y minus y naught, and this is dx and dy. अब क्योंकि हम f of x and y ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम करते क्या है कि हम इसका इंटीग्रल लेते हैं. ठीक है, तो हम इंटरवल ऑफ डबल समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि द रिजल्ट्स ऑफ द इंटीग्रल विल बी सिंपली इक्वल टू f of x. This integral will be equal to f of x naught and y naught. ठीक है, so if we multiply two dimensional function f of x y with the delta function delta x minus x naught y minus y naught, the integral the product over the interval minus infinity to infinity, then the result will be simply the value of two-dimensional function f of x y at location x naught and y naught. ठीक है, तो ये अब हमारे पास सिंपल रिजल्ट आ जाएगा इसके लिए. अब हम करते क्या हैं, सो स्लाइटली मॉडिफाइंग द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वी कैन हैव अ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन व्हिच इज गिवन बाय द टू-डायमेंशनल फंक्शन f of x y, a similar integral operation, and in this case I will take f of alpha. So f of x y हम लेते हैं सेम. अगर हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो क्या होगा, क्या डबल समेशन लेंगे और वो होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और f ऑफ अल्फा बीटा, एंड देन हमारे पास आएगा डेल्टा x माइनस अल्फा y माइनस बीटा dx dy. ठीक है, so what we have, this is now the original function that we have, and in this situation if
we add the noise. So as we remove the noise in the beginning, so now we will add it here. So for noise eta term, what we have simply last time what we have done, we add it as a 0, but now we put it as some value. So what we have g of x y, अब हमारे पास क्या आएगा, is equal to h of f of x y, ठीक है, प्लस ईटा x एंड y आ जाएगा. अब ये हमारे पास थे क्योंकि ये हमारे पास नॉइज़ है और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है ऑलरेडी जो कि यहाँ से है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल क्या आ जाएगा, g of x एंड y इज इक्वल टू h ऑफ डबल समेशन इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और फिर हम लेते हैं यहाँ पर f of alpha and beta and then delta x minus alpha y minus beta dx and dy. ठीक है, so now this is we put replace the value, and now we also have we have to put the noise also. So this we add it as a constant value. okay, तो अब क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, हम इसके साथ प्लस सिंपली ईटा एक्स एंड वाई कर लेते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एच ऑफ डबल इंटीग्रल क्योंकि हमने लिया हुआ है, तो हम ये डबल इंटीग्रल जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं. तो जब हम इसको सिंपली बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच आ जाएगा, और बाकी ये जो सारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, प्लस एक्स और वाई ले लेंगे. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी और चेंजेस हम करेंगे, और वो चेंजेस क्या होंगी कि इस सिचुएशन में हम सिंपली पॉइंट स्प्रेड या इम्पल्स रिस्पांस देखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और जो नॉइज़ है इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ताकि आगे हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकें. सो g of x y कैन नाउ बी रिटन एज अ सेम डबल इंटीग्रल. सो व्हाट वी कैन डू, we can have a g of x and y is equal to double integral minus infinity to infinity f of alpha beta, और ये h जो है हम इसको अंदर ले जाते हैं डेल्टा की तरफ. सो डेल्टा x माइनस अल्फा y माइनस बीटा dx एंड dy. ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया. तो अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो h ऑफ x जो डेल्टा के साथ है, सो नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म h ऑफ डेल्टा x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, वी कैन राइट दिस एज अ h alpha. So what we can do now, h delta x minus alpha y minus beta, this we can write down as a h x alpha y beta.
and this is nothing but what we know as a impulse response. So this is the impulse response, and this impulse response of the operator H when the input is an impulse given in the delta x minus alpha y minus beta. In case of optic, this impulse response is popularly known as a point spread function. तो हम करते क्या है कि हम इसको एज अ इम्पल्स रिस्पॉन्स लेते हैं और इसको हम पॉइंट स्प्रेड फंक्शन कहते हैं. नॉर्मली हम इससे नोन होता है इससे, ठीक है. सो यूजिंग दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स, now the same gfxy we can written as double integral minus infinity to infinity, and then we have f alpha beta h into x alpha y beta d alpha d beta. So this is what we know as a popularly known as a superposition integral of the first kind. Now the last expression is very important. So if it simply says that if the impulse response of the operator H is known, then it is possible to find out the response of the operator H to any arbitrary input f alpha beta. So that is what has been done here, that using the knowledge of the impulse response H x alpha y beta, we have been able to find out the response of the system to the input f alpha beta. And this impulse response is the one which is uniquely or completely characterizes the system. तो अब अगर हमारे पास impulse response होगा तो हम इस impulse response से simple system जो कि अल्फा बीटा की लोकेशन पर जो भी पॉइंट होगा हम उसके लिए डिग्रेडेशन फंक्शन की वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सिंपल impulse response है. अब हम करते क्या हैं, if we have H as a position invariant, then what we can do, we can use it as a for further expansion. So H is a position invariant, and what we can have H delta x minus alpha y minus beta is equal to H x minus alpha y minus beta, ठीक है. So now using this position inverse property, now we can write as a g of x y is equal to double integral minus infinity to infinity f of alpha and beta h x minus alpha y minus beta d of x and d of y, ठीक है. तो अब हम इसको simply g of x that is a degraded image as a simple double integral. So now this is the degradation value for our particular expression, and this g of x is actually the correlation of f and h values. Okay, so it's a function of 2. So what we can do, we can have a correlation of it, and this is simply now with the earlier expression we can have a noise term also, we can add it, and in that case what we can do, we can put it as a g of
x and y is equal to double integral minus infinity to infinity f of alpha बीटा और उसके बाद कोवोलेशन ऑफ h x माइनस अल्फा y माइनस बीटा एंड डी ऑफ x और डी ऑफ y आ जाएगा और प्लस हमने ईटा नॉइस अब दोबारा हम यहाँ पर ले आए. So this is the general image degradation model, and you will find that here we have assume the degradation function h is a linear. So now in this situation h is linear in position, and then the position invariant, it is also in position invariant. It is very important to note that many of the degradation operation which can encounter in reality can be approximated by such a linear space invariant or linear position invariant model. So the advantage is once of the degradation model can be approximated by linear position invariant model, then the linear system theory can be used to find out the solution for the image restoration process. That means that we can use all the tools of linear system theory to estimate what will be the restored image. And this restored image is will be f of f hat xy from a given degradation image. So we know that we have some knowledge of degradation function h xy, and we have some knowledge of the noise function eta xy. So for the formulation till now is the formulation of continuous case, and we know that our image is normally a digital image. So for a digital image we need to have and simply the formulation can be in a equivalent in discrete formulation. So for a discrete formulation we will have to make a little bit of changes. So discrete formulation degradation model, first in case of one dimension, and later it will be expanded to two dimension case for a digital image processing operation. For simplicity, initially we will neglect the contribution of noise term, that is eta xy. अब हमें ये पता है कि हम पहले वन डायमेंशनल के लिए डिस्क्रीट में जाएंगे और फिर हम उसके बाद टू डायमेंशनल के लिए, और हम जो नॉइज़ है उसको इग्नोर कर लेते हैं ताकि हम उसके फार्मूलाज क्लियरली डिराइव कर सकें और उसके बाद हम उसको उसमें नॉइज़ भी ऐड कर लेंगे. सो हम करते क्या है, सो इन केस ऑफ वन डायमेंशनल इन द कंटिन्यूस सिग्नल वी हैव अ टू सिग्नल एफ ऑफ एक्स and h of x. ठीक है. So f of x is the input signal and h of x is the degradation function. So f of x is the input function and h of x is the degradation function. For that reason what we'll need to have, we need to have a uniformly simplify these two functions f of x and h of x. So we assume that f of x is uniformly sampled to give an array of dimension a. ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन होंगी वो a होंगी और जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास सिंपल b होंगी. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, if this is the dimension, then we have f of x is x equal to 0 to 1 and it will continue a minus 1. ठीक है, और हमारे पास जो h होगा वो भी इसी तरह होगा, x is equal to 0 1 and b minus 1. ठीक है. So this means f of x is the in discrete case varies from 0 to a minus 1 and h of x varies from 0 to b minus 1. Okay, then we need to add additional zeros to this f of x and b of x or h of x to make both of them in same dimension, and
For that what we do, we have to have this as a capital M. ठीक है, हम एडिशनल इसमें ऐड करते हैं ताकि वो जो डायमेंशनलिटी का इशू है वो इजीली सॉल्व हो सके मैट्रिक्स की सिचुएशन में. ठीक है, सो एज वी ऐड zeros in both terms, so what we have now, f of e x and h of e x. तो अब इसको हम e के साथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने x को एक्सटेंड किया है और डायमेंशनलिटी के लिए हमने जब उसमें एडिटिव ज़ीरो ऐड किया था, जो हमने लास्ट टाइम हमने फिल्टर्स के सिचुएशन में देखा था कि हम उसमें ज़ीरो ऐड करते हैं ताकि वो जो डायमेंशन है उसके प्रॉपर बन सके. तो जब हम वो ज़ीरो ऐड कर लेंगे तो हम इसको f ऑफ e और h ऑफ e के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब इसको हम आगे यूज़ करेंगे और आगे हम इस तरह यूज़ करते हैं कि इन डिस्क्रीट डोमेन व्हाट वी हैव द कन्वोल्यूशन फंक्शन कैन बी रिटन एज अ g ऑफ e x is equal to summation m is equal to 0, starts from 0 to m minus 1, and then we have f e m h e x minus m, where x is equal to 0, 1, and it continues to m minus 1. ठीक है, so we assume that this is the discrete formulation of the correlation equation that we have obtained in case of continuous signal. So now if we want to have written in a form of a matrix, then what we can do, we can have G is equal to H and F. ठीक है, तो F अब हमारे पास क्या है, F is equal to FE 0, FE 1, और FE m minus 1, और G हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू G0, ये E होगा क्योंकि G1 और GE m minus 1. तो ये अब हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया. अब हम करते क्या है कि हम इसको लेकर जाते हैं डायमेंशनलिटी में, कि अगर हमारे पास h है तो ये तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई, हमारे पास g की आ गई, तो अब h के लिए हम क्या करते हैं, सो h हमारे पास है h इज इक्वल टू m इंटू m. ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम इसको अगर डिफाइन करेंगे h को, तो h मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि f ऑफ h0 0 minus 1 and then he minus m plus 1. ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा h ऑफ e वन, h of e 0, और ये h ऑफ e माइनस m प्लस 2. सेम इसी तरह हम चलते जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा h ऑफ e माइनस 1, h ऑफ e m माइनस 2, और ये आ जाएगा h ऑफ e 0.
So h is the degradation function, and in this case this is periodic, so that's why h of E x we have as a periodic m. So that's why we have h of E as a x plus m is equal to h of E x. ठीक है. Now remember that we have assumed that h of Ex is the actually periodic with the capital M. So if this function is periodic with the periodicity capital M, that means that Hex plus capital M that will be same as He of x. ठीक है. अब ये हमारे पास सिंपल प्रूफ हो जाएगा. अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि now the degradation matrix can be written in a different form, that where the matrix H will have to be represented as a He0, क्योंकि हमने यहाँ पर assumption ली है कि ये जो है इक्वल आ जाएगा. इस वजह से हम यहाँ पर चेंजेस लाते हैं और वो चेंजेस क्या होंगे, He0 आ जाएगा. ठीक है. फिर Hem-1 आ जाएगा, He-2 आ जाएगा और He1 आ जाएगा. ठीक है. सेम इसी तरह He1 आ जाएगा, He0, He-1 आ जाएगा. यहाँ पर हमारे पास He2 आ जाएगा. ठीक है. सेम इसी तरह अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Hem-1, He-2, Hem-1 और ये आ जाएगा He0. So now if you analyze this particular matrix, we will find that this degradation matrix capital H has a very interesting property. The first property is different rows of this matrix are actually generated by rotating the right of the previous term, rotation to the right of the previous term. So here if you look at the second row, you will find that the second row is actually generated by rotating the first row in the right. ठीक है. हम अगर इसको simply right की तरफ rotate करते हैं. Similarly the third row, or maybe if we continue then it will be same like this. So this is called circulation matrix because different rows are generated by circular rotation, and circularity of the particular matrix is complete in case of in this case. So what we have, this is as a circularity of matrix. So here we find that in case of discrete formulation, the discrete formula is also a correlation operation, and here the matrix equation of the degradation model is also H. So now what we have, we can have it as a in a form of a one dimension, then we move to the in a form of a two dimension. तो अब ये हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी अगर हमारे पास वन डायमेंशन है. और हम अब करते क्या है कि अगर हम टू डायमेंशन में करेंगे तो टू डायमेंशन के लिए हमारे पास सिंपल होने चाहिए f of x and y, और ये होंगे a इंटू b मैट्रिक्स की फॉर्म में, डायमेंशन की फॉर्म में, और सेम हमारे पास h आएगा. ये हमारे पास C और B के सिचुएशन में आ जाएगा. ठीक है. अब अगर हमारे पास A और B के डायमेंशंस हैं और C और D के डायमेंशन, अगर हम इनको सिमिलर लेते हैं तो हम करते क्या हैं, हम वो जब एडिशन करते हैं, एडिटिव
वैल्यूज़ का ताकि वो सिमिलर आ जाए, तो हम उसके लिए एफ ऑफ ई लेते हैं, एक्सटेंडेड कर लेते हैं उसको एक्स और वाई, और एच ऑफ ई ले लेते हैं, वो भी एक्सटेंडेड होगा एक्स और वाई। तो ये दोनों हमारे पास किन डायमेंशंस में आ जाएंगी, ये होंगी सिंपली m इंटू एन। ठीक है, अगर हम ये एजम्पशन करते हैं तो इसके बाद हम सिंपली फार्मूला को डिराइव करेंगे कि अब हमारे पास अगर g ऑफ e होगा जो कि डिग्रेडेशन के बाद की आउटपुट हमारे पास आएगी, तो वो कैसे आएगी कि हम सिंपल डबल समेशन लेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन में है हम। तो m इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू 0, n माइनस 1 आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि f ऑफ e लेते हैं m एंड n, और फिर उसके बाद हम h ऑफ e लेते हैं जो कि डिग्रेडेशन फंक्शन है। हम उसके लिए हम क्या करते हैं x माइनस m और y माइनस n लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा अगर तो हम सिंपली 2 डायमेंशनल मॉडल डिग्रेडेशन फंक्शन का आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब अगर हम जाते हैं मैट्रिक्स की सिचुएशन में, तो मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली G इज इक्वल टू एच एफ प्लस ईटा, जो हम n लिया था हमने। ठीक है, और वो ईटा क्या है, वो हमारे पास वो नॉइज है। सो नाउ वेयर दिस एफ फैक्टर इज अ डायमेंशन कैपिटल M इंटू n। ठीक है, ये जो डायमेंशन है इसकी m इंटू n है, एंड डिग्रेडेशन मैट्रिक्स H इन दिस केस विल बी डायमेंशन m इंटू n। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाएगा m इंटू n, और फिर हमारे पास सिंपली बाय दोबारा हम इसको लेते हैं इंटू m इंटू n। ठीक है, and this matrix H will have a very interesting form. This matrix H can now be represented as a H नॉट माइनस। अब हम करते क्या हैं कि इसको, ये हमारे पास सिंपल नॉइज आ जाएगा, हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें H वी कैन रिप्रेजेंटेड एज अ H इज इक्वल टू H0 Hm minus 1 and we continue into H1। ठीक है, और फिर हमारे पास H1 आ जाएगा और H0 और कंटिन्यू करके H2 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे तो Hm माइनस 1 आ जाएगा, Hm माइनस 2 आ जाएगा और कंटिन्यू करके H0। So now the second row can we have H1 and H0, and this is all that we can represent it, where each of the term this we can represent it as a, अगर हमारे पास ये H1 को हम लेते हैं, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि H ऑफ J को लेते हैं। ठीक है, और H ऑफ J जो है हमारे पास सिंपली N इंटू N आ जाएगा। So where each of the term Hj is a matrix dimension n by n, where this Hj is generated from the jth row of the degradation function h, x and y। ठीक है, तो हम सिंपली इसको रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, Hj को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में तो वो किस तरह होगा। सो Hj is equal to He J
0, फिर HE JN-1, सेम इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास HE आ जाएगा J1, सेम HE J1 आ जाएगा, HE J0, इस तरह अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो HE J2 आ जाएगा। और अगर हम एंड तक जाते हैं तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह होगा कि HE JN-1, HE JN-2, सेम HE J0। ठीक है, तो ये अब हमारे पास Hj के लिए वैल्यूज आ जाएंगे। सो यू विल फाइंड दैट दिस मैट्रिक्स Hj which is actually the component of the degradation matrix capital H is a circular matrix, and that we have defined earlier that using this block matrix, the degradation matrix H is also have been subscripted in the form of a circular matrix, and this is also called as a block matrix, block circular matrix. Okay, so in case of a two dimension, what we can do now, we have the basic formula in a case of a two dimension, G is equal to H F plus eta. Now this expression that we have is in a two dimensional as a matrix, and this block is also represented in this Hj is the values for the degradation function. तो यहाँ पर हम करते क्या है कि हम यहाँ कंक्लूड करते हैं अपने लेक्चर को कि जो बेसिक हमने फॉर्मूले थे उसको अंडरस्टैंड किया कि हम अगर वन डायमेंशनल की सिचुएशन में डिग्रेडेशन फंक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल है, और जब हम उसको टू डायमेंशन में लेकर जाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ जो H की वैल्यूज़ हैं, उसका मैट्रिक्स के वैल्यूज़ हैं, वो हर एक के लिए इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करनी होती हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि टू डायमेंशन में है और वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो H है ये एक्चुअली m/n एंड m/n का मैट्रिक्स बना रहा है। तो इस वजह से हम करते क्या है कि हर एक वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पर होगा, तो Hj की वैल्यू लेते हैं और वो n/n का मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है वो एक अलग से मैट्रिक्स जनरेट करेगा। जब वो हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको आपस में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमने ये देखा कि इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक्स क्या है और उसको हम किन कैटेगरीज में डाल सकते हैं, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इमेज इन्हांसमेंट से हमने ये देखा कि इमेज इन्हांसमेंट जो है वो उसके लिए हमारे पास प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इमेज रिस्टोरेशन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डिग्रेडेशन फंक्शन है उसका होना ज़रूरी है, और वो फंक्शन के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको और डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम इमेज प्रोसेसिंग या इमेज प्रोसेस मॉडल देखते हैं तो कैसे होता है कि पहले एक इमेज फंक्शन है f(x,y), फिर हम उसके साथ कोई डिग्रेडेशन वैल्यू ऐड करते हैं h, और साथ में कुछ नॉइज़ ऐड करते हैं, फिर हमारे पास जो आउटपुट आता है वो g(x,y) आ जाएगा। अब उसके बाद हम रिस्टोर करते हैं, इन्वर्स वैल्यूज़ लेते हैं, और जब हम वो इन्वर्स लेंगे तो f(x,y) आ जाएगा हमारे पास, और वो एक्चुअली रिस्टोर्ड इमेज होगा जो कि एक्चुअल इमेज से कुछ डिफरेंट होगा। उसकी वजह यह है कि जो हम एस्टिमेशन वैल्यूज़ ले रहे हैं वो हमें 100% करेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते।
फिर हमने उसके बाद ये देखा कि डिग्रेडेशन मॉडल कंटिन्यूस फंक्शन में किस तरह होंगे और डिस्क्रीट फंक्शन के लिए डिस्क्रीट मॉडल हम कैसे बना सकते हैं, और साथ में हमने उसके 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की सिचुएशन में फॉर्मूलेस देखे कि मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे होंगे, और सिंपल अगर हम उसका एक्सपेंड करते हैं तो वो एक्चुअल फार्मूला किस तरह एग्जिस्ट करेगा। तो आज के लेक्चर को यहाँ पर अख्ताम पजीर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़िल्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। अल्लाह।